ऐसे बनाना है, ऐसे करके। फेसबुक में बैठ जाओ। किसके बनानी عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام والسلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة أعيذني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه فإذا وجهه يتلو لو كان البدر في ليلة تمامه فكما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فواعدي فقال يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السماع يا ولدي ويا صاحب قولي قد أذنت لك فدخل تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا عمتي فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدني الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا من اختاره الله وتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمة قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد. فأقبل عند ذلك فالأول حسن علي بن أبي طالب فقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية أقيوة ابن عم رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد.
فقال له عليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيتنا والكساء وقلت السلام عليك يا عبده يا رسول الله الله وتأذن لأن أكون معكم تحت الكساء فقال وعليك السلام والسلام يا بنت ويا بضعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أخذ برسول الله بطر في الكساء وأومئ بيده اليمنى إلى السماء وقال إن هؤلاء أهل بيت وخاصتي وهامتي لهم لهمي ودمهم دمي يعلمني ما يؤلمهم ويهزنني ما يهزنهم أنا حرب لمن حاربكم وسلم لمن سالكم وعدو لمن عادكم ومحب لمن أحبكم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم رجسا وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ومبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيعة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. اللهم صل على محمد. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل البيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها فقال جبرائيل يا رب أعتذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا فقال لا نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل فقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ولقول لك وهدية وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية وأرضا مدهية وقمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا لا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي إن أدخل معكم فأهل تعاذن لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وهي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت
ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين إلا ما نزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجي وذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين وفيهم مأموم إلا وفرج الله همه ولا مهموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا فقد الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. मजलूम का जो शख्स मददगार नहीं है, मजलूम का जो शख्स मददगार नहीं है, जो कुछ भी कहो शब्बीर का गमखार नहीं है, जो कुछ भी कहो शब्बीर का गमखार नहीं है, जिन हाथों ने की है किसी जालिम की हिदायत वो हाथ अलम छूने का हकदार। اللهم صل على محمد وآل محمد. गुरूर टूट गया कोई मर्तबा न मिला, गुरूर टूट गया कोई मर्तबा न मिला, जफा के बाद उन्हें हासिल जफा न मिला। सरे हुसैन मिला है यजीद को लईं, सरे हुसैन मिला है यजीद को लईं, शिकस्त ये है कि फिर भी झुका हुआ न मिला। नस्ले यजीद से रखता है जो भी राब्ता, नस्ले यजीद से रखता है जो भी राब्ता, जलता है आज भी रोज़ा शब्बीर को देखकर। नस्ले यजीद से रखता है जो भी राब्ता, जलता है आज भी रोज़ा शब्बीर को देखकर। मजलिस में आना इसलिए बिदअत बना दिया, मजलिस में आना इसलिए बिदअत बना दिया, यादें गदीर आती है मिंबर को देखकर। कहते हैं कहते हैं बड़े फक्र से हम गम नहीं करते, कहते हैं बड़े फक्र से हम गम नहीं करते, मातम की सदा सुनते हैं मातम नहीं करते। कहते हैं बड़े फक्र से हम गम नहीं करते, मातम की सदा सुनते हैं मातम नहीं करते। क्यों जलता है आपका दिल आपका सीना, क्यों जलता है आपका दिल आपका सीना, हम आपके सीने पे तो मातम नहीं करते। नारे हैदरी या अली, नारे सलवात, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। इस राज से वाकिफ है ज़माने वाले, इस राज से वाकिफ है ज़माने वाले, अब तक जिंदा है मोहम्मद के घराने वाले। इस राज से वाकिफ है ज़माने वाले, अब तक जिंदा है मोहम्मद के घराने वाले। कुछ मिट गए कुछ मिट जाएंगे, कुछ मिट गए कुछ मिट जाएंगे, या अली या हुसैन तेरा नाम मिटाने वाले। जहरा की अमानत है अज़ादार ये शब्बीर, जहरा की अमानत है अज़ादार ये शब्बीर, अपनी तो इबादत है अज़ादार ये शब्बीर। जहरा की अमानत है अज़ादार ये शब्बीर, अपनी तो इबादत है अज़ादार ये शब्बीर।
लाख सजदों से तो जन्नत की हवा भी न मिलेगी, लाख सजदों से तो जन्नत की हवा भी न मिलेगी, जन्नत की जमानत है आजादारी शब्बीर। मुंतजिर बैठे हैं परचम को उठाने वाले, ऐसा लगता है कि अब्बास हैं आने वाले, ऐसा लगता है कि अब्बास हैं आने वाले। नौजवानों तुम्हें ज़हरा ये दुआ देती है, नौजवानों तुम्हें ज़हरा ये दुआ देती है, खुश रहे परचम अब्बास उठाने वाले, खुश रहे परचम अब्बास उठाने वाले। बोला चुल्लू में जरी खींच के रूहे दरिया, बोला चुल्लू में जरी खींच के रूहे दरिया, ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले, ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले। चश्मे तारीख जरा देख तू सूए दरिया, चश्मे तारीख जरा देख तू सूए दरिया, मुर्तजा फिर दर खैबर है उठाने वाले, मुर्तजा फिर दर खैबर है उठाने वाले। सितम को सब्र का कलमा पढ़ाने आया है, सितम को सब्र का कलमा पढ़ाने आया है, अली के खून का जौहर दिखाने आया है, पहन के हथकड़ी बेड़ी हुसैन का बीमार, अमीर शाम को कैदी बनाने आया है, अमीर शाम को कैदी बनाने आया है। जब के चले जब के चले बात दोपहर रन को न था कोई की जो था तो बन को न था कोई की जो था रकाब तो सकीनता सकीनता रही
के दामन को हुसैन चुपके खड़े थे। झुकाए गर्दन को न आसरा था कोई शाह करबला को, न आसरा था कोई शाह करबला फकत सवार किया था बहन भाई को। नासरा था कोई शाह करबला फकत सवार किया था बहन भाई को। हुसैन जब के चले नारे हैदरी, नारे सलवार। औज़ु बिल्लाहि समीउल अज़ीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल कमाले नेमति व विलायति अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। वस्सलातु वस्सलाम वल हलो वल हराम वल रुकन वल मकाम वस्सलातु वल सयाम वल सुजूद वल क़याम वल शरीयतु वल अहकाम वल हुज्जतु वल बुरहान वल मुहब्बतु वल इरफान वल हक़्क़ु वल बयान वल किताब वल कुरान सय्यदना व नबियना व शफ़ीअना व मौलाना व मौला सक़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन बिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैत तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल्लज़ी अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स अहलल बैत व ताहरहुम तत्हीरा। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु रसूलुल्लाह मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम। खालिक कौनो मकाम मालिक अर्ज़ समा राज़िक इंसान व हैवान ज़मीन का फर्श बिछाने वाला आसमान का शामियाना बगैर किसी सुतून के कायम रखने वाला आफ़ताब व महताब की कंदीलें रोशन करने वाला सितारों को जगमगाने वाला दरियाओं में रवानी अता करने वाला नाचती हुई कहकशा मुस्कुराते हुए गुल दरियाओं में रवानी अता करने वाला नाचती हुई कहकशा मुस्कुराते हुए गुल खल्क करने वाला अपनी मुस्तहकम किताब कुरान मजीद में रसूल अरबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दे रहा है कि ऐसी किताब के जिस किताब के लिए शुरू ही में इरशाद हुआ कि ज़ालिकल किताब ला रैब फीह
ला रतबिन वला बाइसिन वला याबसिन इला फी किताबिन मुबीन। कहीं ये इरशाद हुआ कि इस किताब को बगैर तहारत मत ना करो, इस किताब को हाथ ना लगाओ। और कहीं ये इरशाद हुआ कि अगर मैं इस किताब को पहाड़ पर नाजिल कर देता तो पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो जाता। ऐसी मोतबर किताब में रसूल को हुक्म दिया जा रहा है। कौन से रसूल? ऐसे रसूल जिन्हें कुरान मजीद में खुदा बंदे आलम ने मुख्तलिफ अलकाब से पुकारा है, मुख्तलिफ अंदाज से पहचानवाया है। कहीं मुजम्मिल कहा, कहीं मुदस्सिर कहा, कहीं ताहा कहा, कहीं यासीन कहा, कहीं रहमत कहा, तो कहीं मोहम्मद कहा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके अलावा और भी बहुत से अलकाब पैगंबर को मिले। बहरहाल जो इतने अलकाब का हामिल है उसको हुक्म दिया जाता है, ए रसूल कहो अगर तुम अल्लाह को चाहते हो, अल्लाह को दोस्त रखते हो तो मेरी इत्तबा करो, मेरी पैरवी करो। खुदा तुमको चाहेगा और दोस्त रखेगा। मालूम हुआ कि जब तक कोई पैगंबर इस्लाम की पैरवी ना करे तो खुदा उसका दोस्त नहीं हो सकता, लेकिन जो पैरवी करे पैगंबर की वही खुदा का दोस्त है और खुदा उसका दोस्त है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरे हैदरी, अरे सलवार। अब देखिए कि पैरवी के मानी क्या हैं। तो लुगत ये बताती है कि पैरवी के मानी कदम ब कदम चलना है। तो अब मालूम हुआ कि खुदा उसी का दोस्त हो सकता है जो रसूल के नक्शे कदम पर चलता हो। बस याद रखिए, जो रसूल अरबी के नक्शे कदम से मुनहरिफ होगा वो हरगिज हरगिज खुदा का दोस्त नहीं हो सकता, न खुदा उसका दोस्त हो सकता है। जब इस दुनिया पर नजर डाली जाती है, इस दुनिया का जायजा लिया जाता है, तो कुछ हजरात ऐसे नजर आते हैं जो मुकम्मल तौर पर पैरवी पैगंबर अरबी करते हुए नजर आते हैं, लेकिन कुछ हजरात ऐसे हैं जो मुकम्मल तौर पर पैरवी पैगंबर करते हुए नहीं दिखाई देते और खुद को खुदा का दोस्त शुमार करते हैं और खुदा को अपना दोस्त कहते हैं और बताते हैं कि एक दौर ऐसा भी गुजरा जिसमें पैरवी पैगंबर इस्लाम से जो मुकम्मल तौर से पैरवी रसूल पर आमिल थे और रसूल के कदम ब कदम चलते थे, उनका मर्तबा ऐसा बुलंद हो गया कि कोई मीसम बन गया, कोई अम्मार बना, कोई अबूजर बना, कोई महदाद बना, कोई सलमान बन गया। और जो पैरवी पैगंबर से मुनहरिफ रहा उनमें से कोई अबू सुफियान की सूरत में आया, कोई अबू जहल की सूरत में जाहिर हुआ, कोई मरवान बना, कोई माविया बना, कोई यजीद बना, कोई कोली बना, कोई शिम्र बना, तो कोई इब्ने साद बना। याद रखिए, इस जमाने में भी और आज से कयामत तक जो कोई भी रसूल अरबी की पैरवी करे और नक्शे कदम पर चले तो उसे असर हाजिर का मीसम भी कहा जा सकता है, अम्मार भी कहा जा सकता है, मिर्दाद भी कहा जा सकता है, सलमान भी कहा जा सकता है, अबूजर भी कहना दुरुस्त होगा। लेकिन जो पैरवी पैगंबर अरबी ना करे और रसूल अरबी के कदम चलता हुआ दिखाई ना दे, रसूल अरबी के बताए हुए अहकाम पर आमिल ना हो, तो असर हाजिर का अबू जहल भी होगा, अबू सुफियान भी होगा, मरवान भी होगा, माविया भी होगा, यजीद भी होगा, खूली भी होगा, शिम्र भी होगा, इब्ने साद भी होगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब ये अर्ज करना है कि तमाम के अहकाम में पैरवी रसूल लाजिम और ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि बाद अहकाम में पैरवी रसूल हो और बाद में ना हो। मसलन नमाज में पैरवी रसूल हो, रोज़ा रखते हों, हज करते हों, ज़कात अदा करते हों, लेकिन मुनकिर अहले बैत हों, खुम्स की अदायगी से मुनहरिफ हों, अगर गिरिया और मातम गमे सैयद शुहदा को बिदअत करार देते हों, तो क्या ऐसे अफराद और शख्स की पैरवी रसूल ऐसा शख्स रसूल अरबी का पैरोकार हो सकता है? हरगिज नहीं। जिस तरह शैतान ने सिर्फ एक हुक्म खुदा से इनकार किया तो खुदा बंदे आलम ने लानत का तौब कयामत तक के लिए उसकी गर्दन में डाल दिया। इसी तरह किसी एक हुक्म में अगर कोई पैरवी पैगंबर इस्लाम ना करे तो रसूल के नक्शे कदम ब कदम पर नहीं चल सकता, तो उसके तमाम अमल बेकार हैं और रद्द कर दिए जाएंगे और वो शैतान ही की तरह लानत
लानत का मुस्तहक होगा, बल्कि यूं कहूँ कि वो दौरे हाजिर का शैतान ही होगा। इसलिए कि पैगंबर जो कुछ भी कहता है वो अपनी मर्जी और ख्वाहिश से नहीं, बल्कि वही कहता है जो वही होती है। मालूम हुआ कि रसूल जो भी हुक्म फरमाते हैं वो अपनी मर्जी और ख्वाहिश से नहीं, बल्कि जब हुक्म खुदा होता है और रसूल हुक्म फरमाते हैं, तो अब अगर हुक्म रसूल को हुक्म खुदा कहा जाए तो गलत ना होगा। नतीजा ये निकला कि जो हुक्म खुदा है वही हुक्म रसूल है, और जो हुक्म रसूल है वही हुक्म खुदा है। अगर रसूल अपनी मर्जी और ख्वाहिश से कह रहे हैं तो माज़अल्लाह खुदा ने कुरान में झूठ बोला कि रसूल बगैर मेरी वही के बोलता ही नहीं, बल्कि जब मेरी तरफ से वही होती है तब रसूल कलाम करता है। मालूम हुआ कि ये तमाम अहकाम रसूल खुदा पर खुदा की तरफ से नाजिल किए गए, तब रसूल ने हुक्म दिया। बस यहीं से मसला वाज़ेह हो गया, गुत्थी सुलझ गई, मामला हल हो गया कि जो कौले रसूल है वही कौले खुदा है, और जो कौले खुदा है वही कौले रसूल है। अब देखिए कि जिस तरह रसूल ने नमाज का हुक्म दिया, रोजे की तबलीग की, इस्लाम के अहकाम की नश्र की, इसी तरह अहले बैत को पहचानवाया और उनकी मोहब्बत का हुक्म दिया, और उनके दामन से मुतमस्सिक होने का हुक्म दिया, और उनके कौल और फेल पर अमल करने का हुक्म दिया। तो क्या यह खुदा की मर्जी के खिलाफ था? हरगिज नहीं। अगर मर्जी माबूद के खिलाफ होता तो रसूल के लिए आयत न नाजिल होती। आयत ने नाजिल होकर बता दिया कि रसूल मर्जी माबूद के कुछ बोलता नहीं, और जब वही होती है तो कलाम करता है। मालूम होता है कि जिन जिन अशिया का हुक्म खुदा देता है उन्हीं का हुक्म रसूल भी देते हैं, और उनमें से किसी एक हुक्म को मना करने वाला पैरोकार रसूल अकरम नहीं हो सकता। और जब रसूल का पैरोकार नहीं हो सकता तो याद रखिए कि खुदा हरगिज ऐसे को दोस्त नहीं रखता, और ये जाहिर सी बात है कि खुदा उसका दोस्त नहीं, और ये जाहिर सी बात है कि खुदा उसका दोस्त नहीं, और उसका ठिकाना बरह रास्त जहन्नम ही हो सकता है। सलवात और जो पैरोकार रसूल होगा वो कभी किसी जालिमाना और जाबिराना कुव्वत और ताकत से घबराता नहीं, चाहे उसे फिरौनी ताकत से मुकाबला करना पड़े या यजीदी कुव्वत से। खुदा की कसम, ऐसे ऐसे पैरोकार थे, ऐसे ऐसे नक्श कदम पर चलने वाले थे जिनका जिक्र तोल से खाली नहीं। मुख्तसरन बस इतना समझिए कि जबानें कट गईं, पैरवी रसूल नहीं छोड़ी, इत्तबा करते रहे, रसूल और खुदा के हुक्म की पाबंदी करते रहे। नेज़े पर चढ़ना गवारा कर लिया, लेकिन पाबंद इत्तबा पैरोकार रसूल थे। बाजारों में फिरना गवारा कर लिया, लेकिन पैरवी रसूल ना छोड़ी। गरज के हर किस्म की अजियतें और तकलीफें बर्दाश्त कर ली, लेकिन पैरवी करते रहे। अगर यकीन ना हो तो करबला में देख लीजिए, जो हजरात पैरोकार रसूल और खुदा और आइम्मा में थे, उन्होंने किस जान अफसानी से अपनी अपनी कुर्बानियां पेश की, और कौन सा ऐसा जुल्म था जो उन पर ना किया गया हो। भूखे भी थे, प्यासे भी थे, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि तमाम अंसार और असहाब ने अपनी अपनी कुर्बानी पेश की, ज़ुल्म बर्दाश्त किए, जान देना गवारा किया। लेकिन उन असहाब में से किसी एक के लिए ये नहीं मिलता कि किसी सहाबी के अहलो अयाल के खैमों में आग लगाई गई हो, किसी सहाबी और मददगार नासिर यावर की बेटियां रसन बस्ता बेमकना चादर शहर व शहर फिराई गई हों। किसी से मुताल्लिक ये नहीं मिलता कि किसी सहाबी के मासूम बच्ची को उसकी शहादत के बाद तमाचे लगाए गए हों, या किसी सहाबी की बहन और बीबी के सर से चादर छीनी गई हो। लेकिन ये जुल्म सिर्फ अहले बैत हुसैन के लिए था। इसीलिए हुसैन ने शबे आशूर ये कहा था कि जिसको जाना है जा सकता है, अगर रोशनी में नहीं जाना चाहे तो लो मैं चिराग गुल किए दे रहा हूँ, चले जाओ। लेकिन क्या हुआ, जब चिराग रोशन किया तो 72 चिराग जले और सबकी गर्दनों पे तलवार थी कि आका ये कैसी बातें कर रहे हैं, हम आपको अकेला छोड़ दें। अरे हम
फातिमा जहरा को क्या जवाब देंगे जब वो हमसे सवाल करेंगी कि ये बता कि तूने हमारे लाल को वहीं ऐसे ही अकेला छोड़ दिया, तो हम क्या जवाब देंगे? कहा आका आपके लिए तो 70 बार जिए 70 बार मरे, लेकिन फिर भी आपकी लिए कुर्बानी देंगे। अजीजों, ये हैं अबुल फजल अब्बास। जिंदगी भर हुसैन को आका कहते रहे, हसन को आका कहते रहे। इतने वफा और बहादुर थे कि ना जाने, और इतने खूबसूरत थे कि ना जाने खूबसूरत किस कदर था वो अलीज़ादा। फरिश्ते देखने आते थे उस एहसन नमाजी को, जहाँ पे कासिम अकबर सज्जाद जैसे थे, जहाँ पे कासिम अकबर सज्जाद जैसे थे, वहाँ कमरे बनी हाशिम कहा जाता था गाजी को। अब और मौला अली की दुआ से अब्बास इस दुनिया में आए थे। तो अब्बास तेरा सानी दुनिया में कहाँ मुमकिन, अब्बास तेरा सानी दुनिया में कहाँ मुमकिन। दुनिया को जो देता है उसने तुझे मांगा है, दुनिया को जो देता है उसने तुझे मांगा है। अजीजों, ये हैं अबुल फजल अब्बास। जिंदगी भर हुसैन को आका कहते रहे, हसन को आका कहते रहे, बीबी जैनब को शहजादी कहकर पुकारते रहे। कभी जैनब को बहन कह के ना पुकारा, हुसैन को भाई कह के ना पुकारा, हसन को भाई कह के ना पुकारा, हमेशा अपने को हुसैन का गुलाम कहते रहे। अजीजों, वो मंजर भी आपको याद है ना कि रोज़े आशूर ये तय हुआ कि हुसैन और उम्र साद के दरमियान मसालहत की कोशिश के सिलसिले में गुफ्तगू हो जाए। तय ये हुआ कि उमर साद अपने नाबकार बेटे को लेकर आए और हुसैन अपने लाल अली अकबर को लेकर आए। इधर से उमर साद अपने नाबकार बेटे को लेकर चला, इधर से हुसैन अपने लाल शबीह पैगंबर को लेकर चले। एक घोड़े पर हुसैन सवार हुए, एक पर अली अकबर सवार हुए। एक मर्तबा हुसैन के कानों में आवाज आई कि कोई पीछे आ रहा है। हुसैन ने मुड़कर देखा कि वो कौन आ रहा है। देखा कि आपके आका अब्बास चेहरे पर जलाल, हाथ तलवार पर रखे हुए दौड़ते हुए चले आ रहे हैं। हुसैन ने कहा, भैया अब्बास, तुमको तो मालूम है कि ये मेरे और उमर के साथ के दरमियान ये तय हुआ है कि वो अपना बेटा लाए और मेरी तरफ से मैं और मेरा बेटा जाएगा। ऐ भैया, इसका भाई नहीं आ रहा है तो तुम क्यों आ रहे हो? अजीजों, बर्दाश्त कर लीजिएगा कि आपके आका अब्बास ने क्या कहा। अजीब बात अर्ज कर रहा हूँ। एक मर्तबा अब्बास कहते हैं कि आका जरा गौर से देखिए, इसके पीछे पीछे इसका गुलाम भी तो आ रहा है। अजीजों, जंग शुरू हुई, अंसारे हुसैन मारे गए। एक बिल्कुल नफ्सियाती बात अर्ज करूं, आपने आनो मोहम्मद की शहादत सुनी, आपका क्या हाल हुआ? आपने मुस्लिम के बच्चों की शहादत सुनी, क्या हाल हुआ? आपने कासिम की शहादत सुनी, आपका क्या हाल हुआ? आंसू निकले, दिल पर चोट लगी ना? जरा ये भी तो सोचिए कि अब्बास देख रहे हैं हुसैन कासिम की लाश के टुकड़े उठा के ला रहे हैं, हाथों को जोड़कर आगे बढ़े। कहा, आप मुझको भी मरने की इजाजत दे दीजिए। अली अकबर आगे बढ़े, चचा ये कैसे मुमकिन है? पहले मैं जाऊंगा फिर आप जाएंगे। अजीजों, अब्बास ने कोई जवाब नहीं दिया, आंखों से आंसू बहना शुरू हुए। फिर हुसैन अब्बास की तरफ मुतवज्जे हुए। भैया अब्बास, तुम तो मेरी फौज के अलमदार हो, क्या अलमदार को भी मैदान में जाने की इजाजत होती है? कहा, आका वो फौजी कहाँ रही? अभी गुफ्तगू हो रही थी कि दरे खैमा से सकीना की आवाज आई, अलतश अलतश। कहा, अच्छा आका, इतनी इजाजत दे दीजिए कि मैं जाकर सकीना के लिए पानी ले आऊं। एक मर्तबा हुसैन ने एक खैमे की तरफ इशारा किया। कहा, भैया अब्बास, वो जो खैमा है उसमें कुछ सूखी हुई मशकें रखी हैं, जाके वहां से मशक ले लो। अब जो अब्बास खैमे में पहुंचे तो क्या देखा कि कमरे बनी हाशिम के सारे बच्चे अपने शिकमों को उस नम जमीन पर रखे हुए थे और आवाज दे रहे थे, अलतश अलतश। इतना देखना था कि सामने से एक बच्ची दौड़ती हुई आई और नन्हे नन्हे कदमों से हाथों में एक मशक लिए थी और कह रही थी, चचा अब्बास पानी ले आइए,
चचा अब्बास पानी ले आइए, मैं बहुत प्यासी हूँ। बीबी सकीना ने एक सूखा हुआ मशकीज़ा अब्बास के अलम में बांधा। एक नेज़ा लेकर, एक अलम लेकर अब्बास चले। मैदान कारज़ार में अब्बास आए। अब्बास ने करबला के मैदान में नेज़े से वो जंग की कि लोग बड़े बड़े बहादुरों की शमशीर जनी भूल गए। नामूर पहलवान अब्बास के मुकाबले पर आने लगे। अब्बास का नेज़ा चलता रहा, वो अपने खून में एड़ियां रगड़ते नजर आए। वो जंग नहीं पढ़ूंगा, अभी आप बहुत रोइएगा। नहर पर कब्जा किया, चुल्लू में पानी लिया, दिखाया कि देखो पानी पर मेरा कब्जा हो गया, अगर मैं चाहूं तो पानी पी लूं। लेकिन जब पानी को देखा तो सकीना याद आ गई, अली अकबर याद आ गए, हुसैन के पकड़ाए हुए होंठ याद आ गए। पानी को फेंका, इतनी देर तक पानी के अंदर मशकीज़े को रखा कि मशकीज़ा तर हो गया। अब पानी लेकर चले। अब अजीजों, भागी हुई फौजें सिमटी, तीर चलने लगे। अब अब्बास जंग नहीं कर रहे हैं बल्कि मशकीज़े की हिफाजत कर रहे हैं, किसी तरह से पानी ख़ैमे तक पहुंच जाए। लेकिन जालिम ये चाहते हैं कि कुछ भी हो जाए लेकिन पानी ख़ैमे में न पहुंचने पाए। एक अज़ादारों, अब्बास बढ़े घोड़े से। एक मर्तबा जालिम ने पेड़ के पीछे छुप के अब्बास के शाने का निशाना लिया। एक मर्तबा अब्बास का दाहिना बाजू कलम हुआ, अलम को बाएं हाथ में लिया। उसके बाद जालिम ने बाएं हाथ को कलम कर दिया, अलम झुका। अब्बास ने अपने शाने पर अलम को रोका, मशकीज़े को दांतों से दबाया, आगे बढ़ते रहे। एक मर्तबा हुरमुला का तीर चला, मशके सकीना पर लगा। एक तरफ से मशकीज़े का पानी बहा और एक जानिब से अब्बास का कलेजे का खून। अजीजों, अब अब्बास ने घोड़े को मोड़ा। अब कोई तीर चला रहा है, कोई तलवार चला रहा है। एक मर्तबा एक शकी सामने आया, एक गुर्द गिरा आपके सर पर लगा। सुनिए अजीजों, रावी कहता है कि मैं वो मंजर नहीं भूल सकता कि अब्बास का सर दो हिस्सों में तकसीम हो गया। हाय मेरा आका अब्बास घोड़े से जमीन पर आया, लेकिन किसी ऐसे नहीं आया बल्कि जब कोई घोड़े से गिरता है तो अपने हाथों को टेक देता है। लेकिन अब्बास जिसके शाने कलम हो गए, मुंह के बल जमीन पर गिरे। हाय मेरा आका। अब्बास अपने हाथों का सहारा भी न ले सके। आवाज दी, आका हुसैन, इस गुलाम का सलाम आखिर कबूल कीजिए। हुसैन ने जवाब दिया, भैया अब्बास, तुम्हारे मरने से हुसैन की कमर टूट गई। हुसैन सरहाने आए, सर को उठा के गोद में रखा। अब्बास ने सर खाक पर रख लिया, फिर हुसैन ने सर को गोद में रखा, लेकिन अब्बास ने फिर सर हटा लिया। कहा, भैया अब्बास, क्या सर जानू पर रखने से कोई तकलीफ है? कहा, एक तीर सर में लगा है जो दूसरी की तरफ से निकल गया। मैं नहीं चाहता कि वो तीर आपके जानू पर लगे। अजीजों, अब्बास ने हुसैन के जानू का इतना ख्याल किया, लेकिन असरे आशूर जब हुसैन का पैकर तीरों पर रुका था तब मेरे आका कहाँ थे? हुसैन ने कहा कि भैया अब्बास, तुमने कभी मुझे भाई कह के न पुकारा, एक बार मुझे भाई कहकर पुकारो। एक मर्तबा अब्बास ने कहा, भैया हुसैन, खुदा हाफिज। अज़ादारों, हमारे यहाँ अक्सर इमाम बाड़ों में एक अलम नस्ब होता है। आप जानते हैं कि ये अलम क्यों नस्ब किए गए जाते हैं? 2 मुहर्रम को ज़मीन करबला पर आए हुसैन के बाद यजीदी लश्करों का आना शुरू हो गया। कभी शिमर का लश्कर आया, कभी कूली लश्कर लेकर आया, कभी उमर साद अपना लश्कर लेकर आया, कभी कूफे के सरदारान किबला लश्कर लेकर आए। जब भी कोई लश्कर आता था, खैमों में घोड़े की टापों की आवाज आती थी। ज़ैनब अपने हाथों से अपनी चादर पकड़ लेती थी। सकीना का दिल घबराने लगता था। बीबियों का ये आलम देखकर हुसैन ने 2 अलम सजाए। एक अलम अब्बास को दिया और एक अलम खैमे के सामने नस्ब कर दिया, और उसके बाद सारी बीबियों को बुलाया। कहा, देखो, जब तक ये अलम नस्ब रहे समझ लेना कि हर बीबी की चादर सलामत है। एक मर्तबा
मर्तबा झुके और कहा सकीना जब तक ये आलम है समझ लेना कि कानों में बालियां बाकी हैं। ज़ैनब जब तक ये अलम है समझ लेना कि तुम्हारा भैया जिंदा है। अजीजों, हमारे यहाँ एक अलम ला के दूसरे अलम से मत किया जाता है। सुनिए, अब्बास मारे गए, हुसैन ने हस्बे वसीयत अब्बास के लाशे को वहीं छोड़ा, अलम उठाया लेके चले। हुसैन इधर चले, उधर छोटे छोटे बच्चे, अलम आ रहा है, अलम आ रहा है, मेरा सक्का आ रहा है, मेरा चचा आ रहा है। अलम करीब आया, सकीना ने देखा कि अलम तो है लेकिन अलमदार चचा नहीं है। बाबा के पैरों से लिपट गई, कहा बाबा चचा कहाँ है? कहा वो मारे गए, शाने कलम करके सो गए। सुनिए, एक मर्तबा हुसैन आगे बढ़े, वो जो अलम नस्ब था उसको उसकी जगह से उखाड़ लिया, इसको खाक पर लिटाया और इस अलम को भी खाक पर रखा और आवाज दी, है ज़ैनब तेरा पर्दा लुट गया, ए कुलसूम तेरी चादर लुट गई, ए सकीना तेरी बालियां छिन गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। व तस्लीमन ले अमरे सयालमुल लदीना व ज़लमु अय्यमुल क़लबीन। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। वाजिब भाई को बोलो। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। यहाँ ढूंढ रही है जंगल में सकीना, अब्बास के बाजू या बाबा का सीना। क्या ढूंढ रही है जंगल में सकीना, अब्बास के बाजू या बाबा का सीना। क्या ढूंढ रही है जंगल में सकीना, अब्बास के बाजू या बाबा का सीना। कानों से छिने गोहर और आग थी दामन में, घबराई हुई बच्ची ये कहती रही रन में, है कोई जो मुझको पहुँचाए मदीना। क्या ढूंढ रही है जंगल में सकीना, अब्बास के बाजू या बाबा का सीना। क्या ढूंढ रही है जंगल में सकीना, अब्बास के बाजू या बाबा का सीना। रन से अली असगर को ले आओ मेरे बाबा, सूना नजर आता है भाई का मेरे झूला, असगर के बगैर अब तुझको नहीं जीना। क्या ढूंढ रही है जंगल में सकीना, अब्बास के बाजू या बाबा का सीना। ये शाम के जिंदा में दीवारों को तकती है, क्या सोच के ये जाने रात से सकती है, बिछड़ी है चचा से जब से ये हसीना। क्या ढूंढ रही है जंगल में सकीना, अब्बास के बाजू या बाबा का सीना। पहुंचे जो शहे वाला
सदा सुनकर देखा के रगड़ते हैं बेड़ी को जवां अकबर फैज़े की अनी है और बेटी का सीना क्या ढूंढ रही है जंगल में सकीना अब्बास के बाजू या बाबा का सीना या सकीना अब्बास 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 या सकीना या सकीना या सकीना अब्बास या सकीना 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 आगे तो या सकीना या अब्बास 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 या अब्बास या अब्बास या अब्बास या अब्बास पढ़ो या अब्बास या सकीना या अब्बास या सकीना या अब्बास कदम पीछे रखो पीछे या सकीना या अब्बास या सकीना या अब्बास या सकीना या अब्बास पीछे तक या अब्बास या अब्बास या अब्बास या सकीना या अब्बास या अब्बास या अब्बास या सकीना या अब्बास या अब्बास या अब्बास या सकीना या अब्बास या अब्बास या सकीना
छुपाने की सूरत नहीं कोई। जो छुपाने की सूरत नहीं कोई। अफसर को छुपाने की सूरत नहीं कोई। है बाल खुले रोपार भैया मैं अकेली हूँ। ज़ैनब ने कहा रोकर भैया मैं अकेली हूँ। मेरे खैमे में चले आए। मेरे खैमे में चले आए। ज़ैनब ने कहा रोकर भैया मैं अकेली हूँ। या सकीना या सकीना या सकीना या सकीना। सदल वेदा जान सकीना सदल वेदा जान सदल विदा जान सकीना सदल विदा जान। सदल वेदा जान सकीना सदल वेदा जान सदल विदा जान सकीना सदल विदा जान। सदल वेदा जान सकीना सदल वेदा जान सदल विदा जान सकीना सदल विदा जान। सदल वेदा जान सकीना सदल वेदा जान सदल विदा जान सकीना सदल विदा जान। बाबा तेरे कुर्बान सदल वेदा जान सदल विदा जान सकीना सदल विदा जान सदल विदा जान सकीना सदल विदा जान। जान ले मेरी जान सकीना लौट के हम न आएंगे। हम तो अभी दस्त में खून से नहाएंगे। हम तो अभी दस्त में खून से नहाएंगे। उस देर है मेहमान सदल वेदा जान सदल विदा जान सकीना विदा जान। सदल विदा जान सकीना सदल वेदा जान। बाबा तेरे कुर्बान सदल वेदा जान सदल विदा जान सकीना सदल वेदा जान सदल वेदा जान सकीना सदल विदा जान। सदल विदा जान सकीना सदल वेदा जान सदल वेदा जान सकीना सदल वेदा जान सदल विदा जान सकीना सदल वेदा जान। बाबा तेरे कुर्बान सदल वेदा जान सदल वेदा जान सकीना सदल वेदा जान सदल वेदा जान सकीना सदल वेदा जान। जान ले मेरी जान सकीना लौट के हम न आएंगे। हम तो अभी दस्त में भी बना देना। क्या हम तो अभी दस्त में खून से नहाएंगे। मेरे मेहमान सदल वेदा जान सदल विदा जान सकीना